In our sixth unit, we will have the concept of a pointer. Now, pointer is a very important concept with respect to the C. यानी C की अगर कहीं जान बसती है, C लैंग्वेज की अगर हम बोलेंगे कि C की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो C is having the concept of a pointer. C is having the concept of a structure. C is having the concept of a user defined functions. C is having the derived data types. तो ये सारी जो है ये उपलब्धि है C की. And just because of that, a language which is invented before the 50 years, 50 साल पहले जो लैंग्वेज इन्वेंट की गई है वो आज भी यूज होती है, आज भी लोग उसको सीखते हैं, आज भी वो हमारे करिकुलम में है. ठीक है, तो एक बेस्ट फीचर है C का, दैट इज व्हाट अ पॉइंटर. पॉइंटर is a derived data type in C. It is built from one of the fundamental data types available in C. एक build format में है वो, और it is a derived data type. जनरली ये पूछा जाता है in case of MCQ, pointer is fill in the blanks data type. derived data type है, fundamental data type है, by default है, या फिर library function है, या फिर क्या है ये, none of the above. ठीक है, ऐसे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं. तो in that case the correct option is pointer is a derived data type and it is built from one of the fundamental data types. अब इसकी जो इजाद हुई है, यानी ये जो पॉइंटर कंसेप्ट आया है, दैट वाज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फंडामेंटल डेटा टाइप. पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेसेस एज देयर वैल्यूज. पॉइंटर के पास क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रहता है, एंड दैट is nothing but the values of that particular pointer. Since these memory addresses are the location in the computer memory where the program instructions and data are stored. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर if we are having a one excel file, inside that there are number of rows and columns and we put the data and some formulas that we have applied. एक्सेल में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, एवरेज निकालना है, सम एवरेज निकालना है. ठीक है, और इवन भी हम उसको कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत से अलग अलग फंक्शंस हम एक्सेल में करते हैं. so these are what the instructions and the data which we are putted inside the rows and column, that is nothing but the हमारा raw data है. so all these instruction and data are stored on a one place and that place address will be stored into the pointer variable. यानी जैसे हमारा खुद का हाउस का एक एड्रेस रहता है, ठीक है, हाउस नंबर 45, हाउस नंबर 20, हाउस नंबर 35. ठीक है, so what exactly it is the integer number. if you get the address of that colony, या फिर जो भी नगर है, कॉलोनी है, एरिया है, वहाँ का अगर आपको एड्रेस मिल गया, then easily you can find that particular house number. यानी 1 कहाँ से चालू होता है या फिर 2 कहाँ से चालू होता है, जो भी है हमको अगर पता है, then we can easily find out that 25, 35, whatever the house number of that particular person. Similarly, if we know the address where the file is stored, where the instructions are stored, where the data of that particular file is stored inside the computer memory, then we can reach easily to that particular data, अगर एड्रेस पता है तो. Thus the pointer can be used to access and manipulate data stored into the memory. यानी जो भी डेटा स्टोर रहता है उस पर आप अगर उसको एक्सेस करना चाहते हो, रिट्राइव करना चाहते हो, मैनिपुलेट भी करना चाहते हो, that can be done with the help of a pointer. Otherwise what happen, if there is no pointer, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर एक पता है कि एक कॉलोनी है जिसमें 100 हाउसेस है, तो हाउस नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अमुक ये पर्टिकुलर अमित नाम का अगर कोई लड़का है, उसको अगर हमको सर्च करना है, तो पहले हाउस पे हम जाएंगे, पूछेंगे अंकल आंटी जो भी होंगे, आपके यहाँ पे अमित रहता है, वो बोलेंगे नहीं रहते हैं. फिर सेकंड नंबर हाउस, आपके यहाँ पे अमित रहता है, नहीं रहता है. थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड सो ऑन. वो अगर 99 नंबर के हाउस में अगर रहता है तो आपको 98 नंबर सर्च करना पड़ेगा फिजिकली जाके, या फिर आपको हर टाइम वहाँ पे एक्सेस करके उसको सर्च करना पड़ेगा वेदर अमित इज लिव इन योर हाउस और नॉट. बट इफ यू नो द एड्रेस डायरेक्टली 99, then why should we check 1 2 3 4 5,
directly jump or directly go to that 99 number house and find out over there Amit will be definitely in that particular house if it is Amit's house. So the thing is, a sequential search is one of the way to find out the data, to find out the instructions inside the memory, but it is very much time consuming. अगर हम रोल नंबर्स नहीं डिफाइन करते हैं हमारे क्लास में बच्चों को कॉल करने के लिए, देन देर इज अ कन्फ्यूजन. सर्वेश नाम के 2 स्टूडेंट्स है, वेदांत नाम के भी Yes, sir. नो सर्वेश नाम के 2 स्टूडेंट्स है, वेदांत नाम के भी 2-3 स्टूडेंट्स है, देन ईश्वरी. So if we call to the one person, Ishwari, then definitely 3 students will be there. Which one? It is confusing. Instead of that, we allocate them a serial number or the roll number, student ID, जिसको हम बोल सकते हैं unique ID. ठीक. If we call to that particular roll number as a 15 roll number, then no one will answer. Only 15 roll number person, if he or she present, then they answer. That is what a access with the help of a address with a number. एड्रेस यानी क्या होता है, नंबर ही होता है ना. कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का, मैंने इसके पहले भी पूछा है, किसी का एड्रेस -72 हाउस नंबर होगा. No, sir. है किसी का एड्रेस -72? No, sir. एक आध बार रजनीकांत की मूवी में या फिर वो थोड़ी सी जो ऐसी मूवीज रहती है जैसे फिक्टिशियस, जैसे हैरी पॉटर अगर देखा होगा तो उसमें एक रेलवे स्टेशन बताया था उन्होंने. अगर किसी ने हैरी पॉटर की सीरीज देखी होगी तो पार्ट 1 में एक रेलवे स्टेशन बताया था, वो एक पिलर में रहता था, पिलर के अंदर जाना पड़ता है और उसका क्या 7/1/4 से 6:45 वगैरह कुछ तो भी, 6:45 6:45 कुछ तो भी स्टेशन नंबर था उसका. 1 2 3 4 6 और 7 के बीच में या फिर 7 और 8 के बीच में कहीं तो भी वो रहता था. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो एड्रेस इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, and if we get the address, definitely you can access the data which is present on that address and instructions also. So that will be given by the pointer. That is what a need of a pointer in the current era. Now the pointers are undoubtedly one of the most distinct and exciting feature of a C language, and it has added power and flexibility to the language. Although they appear the little confusion and difficult to understand for the beginner. अब ये भी चीज़ उन्होंने बताई है कि it is difficult, but when it is difficult, when we are not considering it as a access of a address access करता है सिर्फ वो. कुरियर वाला क्या करता है, वो सिर्फ घर का नंबर देखता है और किसका कुरियर है वो चीज़ देखता है. ठीक है, एंड इमीडिएटली रश टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. पोस्टमैन अभी तो नहीं आते हैं, बट किसी ज़माने में पोस्टमैन जो रहते थे उनको अगर किसी का एड्रेस पूछ लिया आपने तो इजीली आपको एड्रेस बता देते थे, क्योंकि वो हर घर जाते थे लेटर लेके, तो उनको पता रहता था. अभी बहुत कम हो गया, लेटर तो कोई भेजता नहीं है. जनरली लेटर जो आते हैं वो कंपनी, हाँ यस, बँकचे लेटर येतात सर. बँकेचे लेटर येतात. तुमचं हे राहिलं, तुमचं ते राहिलं, KYC राहिली, असं राहिलं, ATM येतं किंवा क्रेडिट कार्ड येतो, बस तेवढे बँकेचे लेटर्स येतात किंवा कुठल्या फायनान्स कंपनीचे येतात किंवा काही मॅगझिन्स वगैरे तुम्ही ऑर्डर केले असतील ते येतात. बाकी तर काही कुठलं काही लेटर काही कोणी कोणाला पाठवत नाही. ठीक आहे. पोस्ट बॉक्सचे जे डब्बे होते रेड कलरचे ते पण गायब झालेले आहेत सगळे. ठीक आहे, ते काही दिसत नाहीत आजकाल. पोस्ट ऑफिसमध्ये आता दुसरे कुठल्या तरी फंक्शनॅलिटीज होतात, जसं पासपोर्ट वगैरे राहतं, फिक्स डिपॉझिट, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स राहतात आता पोस्ट ऑफिसमध्ये. पण जनरली जो एक पोस्ट ऑफिसचा एक मेन मोटो होता, लेटर मेसेज ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दॅट इज कम्प्लिटली रिप्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ अ मोबाईल. लोक आता कॉल पण करत नाहीत, कॉलच्या ऐवजी डायरेक्ट व्हिडिओ कॉल करतात किंवा ऑडिओ कॉल करतात. ठीक आहे, देर इज नो नीड ऑफ अ, मे बी इन फ्युचर देर इज नो नीड ऑफ अ सिम कार्ड ऑल्सो. इनबिल्डच एक काहीतरी एक फीचर त्याच्यात येऊन जाईल की ज्याच्या थ्रू तुम्ही, किंवा एखादं सिम कार्ड इनबिल्डच असेल मोबाईलमध्ये, मोबाईल घेतला त्याच्यातच सिम कार्ड, जसं आधी होतं कुठल्या तरी एका मोबाईलमध्ये होतं, रिलायन्सच्या कुठल्या तरी एका मोबाईलमध्ये होतं, सिम कार्ड टाकायची गरज नव्हती आणि
बहुतेक तो CDMA वाला होता, GSM नोकिया. नोकियाचा पण होता. सिम कार्डची गरज नाही आहे. सिमलेस मोबाईल सिस्टम, and it only requires the Wi-Fi, internet. And if you have internet, then you can do the calling also, or you can do the messaging also. Everything is possible. So the thing is, when we can say C is having enormous things, out of that the pointer is the one. C is having advantages, so pointer is the one of the advantage, which is the largest one, right? So when we say that it is a, for the beginner it is quite difficult, so it is not that much of difficult. If we implement it through the practical aspects or concepts, then definitely it is quite easy, right? Then some of the points that we have to consider with the pointer. Pointers are used frequently in a C as they offer a number of benefits to the programmers. They include: pointers are more efficient in the handling of arrays and data tables. Now array. Now when we use the concept of an array, it means that the complete array, whether it is defined of 100 cells or 1000 cells, it will be stored on a वन मेमोरी लोकेशन. वन मेमोरी यानी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो अगर आपको पता चल गई तो पूरे एरे एलिमेंट्स आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि इफ़ यू नो द रोल नंबर, एक रोल नंबर आपको अगर पता है किसी का, तो आप उसके आगे और पीछे के सबके रिजल्ट देख सकते हो. और देखते हैं हम, ऐसा नहीं कि देखते नहीं है, आप भी देखते हो, मैं भी देखता ही हूँ, ठीक. सो बहुत से स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स वो बताते हैं कि ये रिजल्ट है सर, तो रोल नंबर पूछता हूँ मैं उनका, और फिर बाकी जो बच्चे जो रिजल्ट जनरली बताते नहीं है उनका रिजल्ट मैं वहाँ से देख लेता हूँ. मेरे TG में जो बच्चे हैं, तो अभी जो TG में उनको मे भी एक हिंट मिल जाएगी, तो सो दे विल नॉट टेल द रिजल्ट, मे बी ड्यू टू सम रीज़न. सो आई कैन फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ अ एरे. अगर मुझे रोल नंबर पता है देन कंप्लीट रिजल्ट वहाँ पे फेच हो सकता है, ठीक है. देन डेटा टेबल्स, इफ देर इज अ मैट्रिक्स and out of that matrix if I want to access any element a of 3 3 3 by 3 का अगर मैट्रिक्स है तो a of 3 3, a of 3 1, a of 2 3, a of 2 2, ऐसा कोई भी एलिमेंट रैंडमली अगर मुझे एक्सेस करना है, उसका डेटा फेच करना है, देन I will have a pointer, and pointer will hold the address of that particular element, and if that address will be accessed, immediately that data of a element will be also access, वो भी आप access कर सकते हो, right? Then the pointer can be used to return a multiple values from the function via function arguments. Just like that, when we use a print line function, इसके पहले हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक इस प्रकार का जो आउटपुट हमने डिफाइन किया था, ठीक है, यह प्रोग्राम. तो इसमें प्रिंट लाइन नाम का हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है. सो दैट वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर्स, क्योंकि वो रिटर्न करने वाला कुछ भी नहीं था. प्रिंट लाइन मीन्स कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स अंडरस्कोर, अंडरस्कोर प्रिंट करेगा वो, तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है. इंटीजर वैल्यू नहीं, फ्लोट वैल्यू नहीं. बट विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर वी कैन हैव मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज. आपके पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज आप फेच कर सकते हो, right? That made possible with the help of a pointer. Pointer permit references to the function and thereby facilitating passing of a function as an arguments to the other function. अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कैसे? इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, मुझे एक एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना है, और उसमें जो वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं, आर्गुमेंट्स मैंने पास किए हैं, उसमें से कुछ आर्गुमेंट्स मुझे और किसी फंक्शन में यूज़ करनी है, जैसे पाई की वैल्यू. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? पाई आर स्क्वायर. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. अब दोनों में पाई, ये जो है पाई, ये कांस्टेंट है, और रेडियस भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट मीन्स कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉमन है, ठीक है. अब ये जो दो वेरिएबल्स है, यानी ये दो पैरामीटर्स है, एक तो चलो ठीक है 3.14 विच इज़ अ पाई वैल्यू विच इज़ अ कांस्टेंट, वो छोड़ दीजिए, ठीक.
बट रेडियस, पेरीमीटर निकालनी है, सर्कमफरेंस निकालना है, या फिर आपको एरिया निकालना है, सो कुछ पैरामीटर्स जो रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, लाइक अ रेडियस, if we are considering the example of a circle. So instead of calling that radius again and again, we can get the reference of that particular radius variable which is stored on a some memory location. उसका अगर एड्रेस आपको मिल गया तो डायरेक्टली आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. So that is what they are permitting with the help of a pointer to the function. एक फंक्शन में आपने रेडियस यूज किया, दूसरे फंक्शन में आपको दूसरी रेडियस यूज करने की जरूरत अगर लगती है, यू कैन यूज इट, बट द सेम स्ट्रक्चर इज देयर, सेम सर्कल इज देयर. इन दैट केस आपको उसका एरिया भी निकालना है, या फिर सर्कमफरेंस भी निकालना है, या फिर उसका पेरीमीटर निकालना है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसमें अगर रेडियस कॉमन है तो आप वो एक फंक्शन से उस आर्गुमेंट को दूसरे फंक्शन में इजीली फेच कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज अ पासिंग ऑफ अ फंक्शन as a argument to the other function. ये जनरली होता नहीं है. क्यों नहीं होता? Just because of that scope of that particular variable is limited in between the opening and closing parenthesis. But permit ये pointer जो है ये permit करता है. ठीक है. It's just like that कि हमारे घर पे खाना बनता है, हम खाते हैं, ठीक है, everyone does it, ठीक है, बट बचपन में बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, घर के अलावा आजू बाजू में जो पड़ोस में जो हमारे नेबर्स रहते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ खाना खा के आते हैं और फिर घर पे नहीं खाएंगे. ठीक है, तो ये बचपन में इजीली एक्सेसिबल है. कोई अभी जाता है क्या बाजू में पड़ोस में और बोलता है कि काकू वाड़ा भर ताट वाड़ा, भूख लगली? कोई करता है क्या ऐसे? नो सर. नहीं नो करता सर. नहीं करता. और अगर करता भी होगा या फिर ट्राई भी करेगा, वो वटाने सर है हमारे एक सीपी के, उन्होंने बताया था कि ऐसा करो करके. ठीक है, तो उस घर के जो भी है बड़े छोटे, वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करेंगे. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. बट बचपन में हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के भी घर पे चले जाते हैं. ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जो पहचान के हैं उनके यहाँ पे जाते हैं. काकू हे द्या, काकू ते द्या, काकू आंबे द्या, हे द्या ते द्या, काही फरक नाही पडत. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ रिग्रेट. बट वंस वी ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एज, हम वैसे भी अगर उन्होंने बुलाया नाश्ते के लिए, चाय पानी के लिए, तो भी नहीं जाते. नहीं यार, वहाँ पे जाने के बाद वो पूछेंगे रिजल्ट क्या लग गया, 12th में कितने मिले, फर्स्ट ईयर कैसे चल रहा है, क्लासेस चल रहे कि नहीं चल रहे, ये फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे वो, इसलिए हम नहीं जाएंगे. वी हेजिटेड. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, C program, normal C program without pointer, they will not allow you local members from one function to the another function. They can't access it. It is not permittable. उसका स्कोप लिमिटेड रहता है. ठीक है, जैसे आज हमारा स्कोप लिमिटेड हो गया है. ठीक है, हम हमारे घर पे ही रहते हैं, कहीं और जा नहीं सकते, ये तो पैंडेमिक की वजह से. बट अगर पैंडेमिक भी नहीं रहा तो बहुत रेयरली हम हमारे फ्रेंड्स वगैरह के घर पे जाते हैं और उनके साथ डिस्कस वगैरह करते हैं या फिर उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल की वजह से वो सब 24/7 अपन कनेक्टेड ही है ना. सो देन देर इज नो नीड टू गो फिजिकली टू मीट समवन एल्स. करेक्ट. बट इन केस ऑफ अ पॉइंटर विल अलाउ यू दैट लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ वन फंक्शन can accessible into the another function also, which is called as a passing arguments to the another function. So that was one of the big advantage of a pointer. इसमें रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है. ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, बाद में पॉइंटर विल प्रोवाइड यू द रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड. करेक्ट. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमने जो भी चीज़ यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो भी गैजेट्स यूज़ करते हैं, वो अगर ऐसे बने होते थे कि एक बार यूज़ करो और भूल जाओ, फिर मेड इन चाइना. करेक्ट. सवेरे चलेगा शाम तक खराब हो जाएगा. अगर रहता था तो कितने सारे गैजेट्स खरीदने पड़ते थे. बट जो लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप या फिर जो मोबाइल हम एक बार यूज़ करते हैं या फिर एक बार उसको आप परचेस करते हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उसमें जान रहती है, जब तक है जान.
तो अगर जान उसकी चली गई, रैम चली गई, उसकी मदरबोर्ड चला गया, सब उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं या फिर उसको बाजू में रख देते हैं कूड़े कचरे में, दूसरा लेते हैं, बट तब तक के वो चलता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रीयूजेबिलिटी. So this reusability is also required in the programming language, and because of that a lots of memory can be used, a lots of time that also be saved. memory यानी it is directly proportional to the time. जितनी memory कम use होगी उतना time आपका क्या होगा, कम लगेगा प्रोसेसिंग के लिए, और जितना कम प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा उतने आपकी इफिशिएंसी जो है प्रोग्राम की वो बढ़ेगी. ठीक है. अभी हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट. तो प्राइवेट वेबसाइट जो रहते हैं उनके सर्वर जो रहते हैं वो बहुत ही हाईली इफिशिएंट रहते हैं. गूगल का सर्वर ही देख लो. और वही आज अब हम अगर हमारे कॉलेज के सर्वर की बात करते हैं जो थोड़ा लिमिटेड एक्सेस देता है, तो वो बहुत बार रिफ्रेश करने के बाद ओपन भी नहीं होता है. कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया कि गूगल नेट चल रहा है बराबर और गूगल पे आप जा रहे हैं और गूगल आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है? किया है किसी ने एक्सपीरियंस? नेट का स्पीड अच्छा नो है, सर। नेट का स्पीड अच्छा है, वो चेक किया आपने ओखला पे, और आप गूगल पे जा रहे हो और गूगल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा. ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. उसके पास दुनिया का डेटा है, पूरी लैंग्वेजेस है उसके पास. दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी उसमें से एक 400-500 छोड़ के आदिवासी जो लैंग्वेजेस है, जो एकदम रिमोट लैंग्वेजेस है, जो गूगल को भी नहीं पता है, वो कुछ ही लोगों को पता है, वो लैंग्वेजेस छोड़ के बाकी सारी लैंग्वेजेस गूगल के पास हैं. दुनिया की जितनी भी ज़्यादातर बोली जाती है उतने लैंग्वेजेस में उसके पास डेटा स्टोर्ड है. कैन यू इमेजिन इट? और उसमें से वो डेटा आपको कुछ सेकंडों में देता है, माइक्रो सेकंड में आपको प्रोवाइड करता है. सो देयर सर्वर इज हाईली रिकमेंडेड और हाईली यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ अ सच एडवांस टूल्स लाइक अ पॉइंटर ऑल्सो. ठीक है. पॉइंटर का भी कंसेप्ट वो होता है, बट वो सिक्योर पॉइंटर्स यूज करते हैं. जो अब डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नॉट दैट मच ऑफ सिक्योर, दे यूज द सिक्योर पॉइंटर्स. देन next point is the use of a pointer array to the character string results in saving of a data storage space in the memory. ठीक. अब ये जो स्ट्रिंग रिलेटेड हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो मे बी रैंडमली भी स्टोर हो सकता है. उसमें अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो एरे के हिसाब से यानी कॉन्जिक्यूटिव भी स्टोर होता है. तो उस केस में पॉइंटर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है हमको स्टोरेज स्पेस को मैनेज करने के लिए. देन फिफ्थ पॉइंट, that pointer allow C to support dynamic memory management. ठीक है. इसका अब हमने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था. अगर हम एरे डिफाइन करते हैं विथ अ फिक्स साइज इंटीजर a ऑफ 10, ये अगर हम लिखते हैं तो वो 0 to 9 तक ही चलेगा, राइट? 11 नंबर का कोई भी उसमें एलिमेंट स्टोर नहीं होगा, करेक्ट? एम आई राइट? हेलो. यस सर। हाँ. सर समझ में नहीं। integer a of 10 array, a simple array. Is it screen visible? Paint. यस सर। Okay. Integer a of 10, it is a simple array which range from 0 to 9, correct? Total 10 elements, correct na? Yes, sir. यस यस। Right. Now if we want to store the 11th number element, whether it is possible with integer a of 10? नो सर। No, No. certainly not. In that case, if we don't know the exact size of defined array, so we can initialize it like this, blank. ये याद आ रहा है ये कंसेप्ट? यस सर। जब हम ब्लैंक रखते हैं उसको तो वो अपने आप से जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतनी साइज ले लेगा. \0 मीन्स नल कैरेक्टर के साथ. नल कैरेक्टर हमेशा उसके साथ में रहेगा. ठीक है. तो 0 to 9 अगर हम बोलते हैं तो 0 to 9 एलिमेंट स्टोर हो गए और 10th एलिमेंट 11th एलिमेंट विल ऑल्सो बी देयर विच इज़ अ नल कैरेक्टर. अब उसका नाम ही नल कैरेक्टर है तो उसको काउंटिंग में लिया नहीं जाता है. दैट्स वाई
तो यहाँ पे अगर हम डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या फिर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. इंटीजर ए को आपने एरे डिफाइन कर दिया बट उसकी साइज नहीं दी. साइज नहीं दी इसका मतलब क्या है, आपको जितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर करने हैं इंटीजर डेटा टाइप के, आप कॉन्जिक्यूटिवली उसमें उतने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. इट इज परमिटेबल दैट मच ऑफ एलिमेंट्स. और आफ्टर दैट एंड ऑफ द एलिमेंट 100 एलिमेंट है तो 101 पे \0 रहेगा, मीन्स नल कैरेक्टर रहेगा. So this function will be provided, or this part will be provided by pointer also, which supports the dynamic memory management. इसका मतलब ये है कि pointer this will identify which memory is vacant, which memory location is vacant, and because of that, if the pointer knows the vacant position, it will allocate the variables to that memory location. ऐसा नहीं कि वो वेस्टेज जाने देता है. करेक्ट. जनरली होता है ना कि शादी विवाह में हम बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं रहता है ना कितने मेहमान आने वाले हैं. बट कोविड के वजह से आज परमिशन ही 25 लोगों की है, 30 लोगों की है, 50 लोगों की है, 100 लोगों की है. इन दैट केस वी नो इट हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर. ठीक है, तो उसमें तो वेस्टेज जाने का कोई सवाल ही नहीं आता. ठीक है, सो इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इफ यू नो प्रायर then it is okay, but if you don't know then dynamic memory management is came to the account, and it will invoke, and that pointer will support dynamic memory management. And just because of that, the pointer provides an efficient tool for manipulating dynamic data structures such as a structure, linked list, queues, stacks and trees. ये इसके पहले भी हमने देखे हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, with the help of that we can access the data properly. क्यू में अगर स्टोर करते हैं, स्टैक में अगर स्टोर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो प्रॉपर्टीज़ है. ट्री में हायरार्की बनती है. ठीक है, ऑल दैट कैन बी इफिशिएंटली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर. देन पॉइंटर रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम. अब इतने सारे जो एडवांटेज अगर पॉइंटर दे रहा है तो डेफिनेटली उससे क्या होता है, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, दे इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड दस रिड्यूस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम. डेफिनेटली अगर आप एक नॉर्मल प्रोग्राम अगर लिख रहे हो 150 लाइन्स का और उसको आप पॉइंटर के वजह से रिड्यूस कर पाए 70 लाइन्स पे, आधे से भी लगभग कम. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगा, number of lines are less, then it will execute earlier, and thus the program execution time, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो भी कम लगेगा, efficiency बढ़ जाएगी. ठीक, so that is what exactly the role of a pointer. Now what that pointer does actually, ये तो हो गया theoretical part कि हमने ये देख लिया कि pointer is one of the good concept, C में है और C के इस पॉइंटर होने की वजह से C बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, बट हाउ we can understand the concept of a pointer. The computer memory is a sequential collection of a storage cells. इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि मेमोरी जो रहती है वो वर्टिकल रहती है. ठीक है, that's what they say. Computer memory is a sequential collection of a storage cells which is shown in the figure 13.1. अब ये जो डेफिनेशन है उसके ऊपर से हम ये भी बोल सकते हैं सिक्वेंशियल यानी वो हॉरिजॉन्टल भी रह सकती है, वर्टिकल ही रहेगी ऐसा नहीं. बट they considered it as a vertical one. Each cell commonly known as a byte. Byte सबको पता है, याद आ रहा है byte के related? Yes, sir. Yes. Bit, byte. Yes, sir. Then nibble. Then kilobyte, megabyte, terabyte, zettabyte, word. ये सारे के सारे हमने इसके पहले देखे हुए हैं. उसमें का ये जो हमारा बाइट है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज वाला बाइट हैज़ अ नंबर कॉल्ड एज अ एड्रेस एसोसिएटेड विथ इट. ठीक है, जैसे अब ये मेमोरी सेल दिख रहा है हमें पहला, फर्स्ट मेमोरी सेल विच विल होल्ड द वैल्यू, एंड in front of that memory cell there should be the one variable which indicating that it is the value of that variable. Just like that
ए इक्वल टू, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इन केस ऑफ दिस, हाँ टू, दिस इज वन द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। Now on the right hand side of this particular memory cell there is an address 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे एड्रेसेस है। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देर इज अ वेरिएबल a b, if it is an array, so in that case if it is an array then a of 0, array अगर है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है हमने a of 0, ये क्यों नहीं है, this is not a q, this is a, ठीक है। देन a of 1, यहाँ पे a of 1 रहेगा, a of 2 रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। इफ इट इज एरे, अगर एरे नहीं रहता है तो उस केस में क्या रहेगा, a वेरिएबल, b वेरिएबल, c वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ नोटेशन गिवन टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, ठीक है। बट उसका एड्रेस क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो pointer points to that particular address and just because of that pointer we can directly fetch this particular variable and their respective data. That is what a pointer concept. अगर आपको एड्रेस पता है तो एड्रेस से आप क्या कर सकते हो, ये जो कोई भी डेटा है इसमें दैट वी कैन फेच डायरेक्टली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर एड्रेस, करेक्ट। So typically the address are the number consecutively starting from a 0. The last address depends on the memory size. A computer system having a 64K, K यानी क्या होगा, 1024, 32K, 64K, 128K, इसका मीनिंग क्या होगा, ये K क्या मीनिंग है, व्हाट प्लीज रिपीट। सर 1000 में शायद 1000 और सर मे बी किलोबाइट। ओके, और कोई, सो 1024, 1024K, okay. So it is related with a computer system, that means a memory. So definitely it is related with the bytes, means kilobytes, 64 kilobytes that memory will be there. K अगर हम मैथमेटिक्स या फिर कोई जनरल टर्म के रिलेटेड अगर कंसिडर करते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज द K. तो 64K विल हैव एटलीस्ट एड्रेस ऑफ, यहीं पे दिख जाता है आपको कि 65,535, यानी यहाँ 0 से लेके तो 65,535 यहाँ तक मेमोरी ये एड्रेसेस रेंज करेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 13.1 में दिखता है कि इतनी सारी मेमोरी 64K में रह सकती है। अगर इफ यू आर यूजिंग अ 32K, सो दैट मच ऑफ in terms of 32,000 or nearly about 31,000, because some of the memory is allocated for a system itself. ये पूरी की पूरी नहीं मिलती है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि 2 GB का अगर पेन ड्राइव है तो वो 2 GB ऑफर नहीं करता है, लेस देन 2 GB विल बी ऑफर्ड टू यू, राइट। नाउ whenever we declare a variable the system allocates somewhere in the memory. अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, ये हमारे ऊपर भी लगता है। कुछ अगर चीज़ हमने बाहर से लाई है जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ चीज़ है, हम घर पे आके कहीं ना कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ अनस्ट्रक्चर्ड या फिर अनफॉर्मेटेड स्टोरेज, हम उसको बोल सकते हैं अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड यानी हर एक चीज़ जगहों पे रखना, सॉर्टेड वन, ठीक है। जनरली अगर बॉयज़ की अगर रूम देखी तो कम्प्लीटली अनसॉर्टेड रहती है जनरली, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन सम जेंडर, बट गर्ल्स की रूम थोड़ी बहुत सॉर्टेड रहती है, ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। सो द केस इज
when we are allocating a particular variable with some data type, it will store somewhere else into the memory. कहीं पे भी store हो जाता है वो, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे store कर दिया, ठीक है, somewhere in the memory, an appropriate location to hold the value of the variable, वहाँ पे वो store होता है. But if you want to fetch that particular variable, we just have to find out the each and every cell. वहाँ से फिर कॉन्जिक्यूटिवली सर्च करते 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 जाना पड़ता है, और सबसे आखिरी में अगर वो स्टोर हुआ होगा, मे बी इन दैट केस वी हैव टू सर्च कंप्लीट मेमोरी सेल्स, पूरे का पूरा मेमोरी सेल्स पूरा ढूंढना पड़ता है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट response of that particular search very very late, and your system is getting hang because of that. So since every byte has a unique address member, this location will have its own address number. Consider that the following statement like integer quantity, and quantity is 179. This statement instructs the system to find the location for the integer variable quantity and puts the value 179 into that particular location. जैसे यानी यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ क्वांटिटी, ये मैं इसको क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 179 ये वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है. दिस वन इज द पैक. 179 ये वैल्यू मैंने क्यू वेरिएबल पे, क्वांटिटी वेरिएबल पे स्टोर कर दी, विच इज हैविंग द एड्रेस 4. उसका एड्रेस क्या है? 4. नाउ let us assume that the system has chosen the address location 4 है हमारे केस में, यहाँ पे 5000 है, for the quantity. We may be represent this shown in the figure 13.2. यहाँ पे quantity है which is a variable, q is the variable, 179 is the value, and इनके केस में 500 is the address, हमारे केस में 4 is the address and q is the variable. Here we have a q is the variable and 179 is the value and 4 is the address, correct? So that during the execution of the program the system always associate with the name quantity. अब जब भी आप प्रोग्राम में उसको इन्वोक करोगे तो वहाँ पे एड्रेस नहीं आएगा, क्वांटिटी ये वेरिएबल का नाम आएगा, विद द एड्रेस 500, विद द एड्रेस 4, हमारे यहाँ इसमें 4 एड्रेस है. वी मे हैव एक्सेस द वैल्यूज, we may have the access to the values 179 by using either the name or the address 500. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पहले तक क्या होता था, पॉइंटर जब नहीं था तब हम सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएबल के नाम से इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर पाते थे. बट जैसे अब एड्रेस का कंसेप्ट आ गया, वी कैन फेच द डेटा विद द एड्रेस, वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू 179 विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस 4. इससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक नंबर, उसमें कोई डुप्लीकेशन होने के चांसेस ही नहीं है, करेक्ट. एक क्लास में 2 रोल नंबर के बच्चे नहीं रह सकते, उसी प्रकार से मेमोरी में 2 एड्रेस पोजीशंस सेम एड्रेस पोजीशन नहीं रह सकती है. सिंस मेमोरी एड्रेसेस आर simply a number and they can be assigned to a some variable that can be stored into the memory like any other variable. Such variables that holds the memory address are called as a pointer variables. यानी इसके पहले तक हमने जो वेरिएबल्स देखे, that was a normal variable which holds the data, या फिर नंबर, इंटीजर है तो नंबर, फ्लोट है तो नंबर, कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग, या फिर कैरेक्टर है तो एक सिंगल कैरेक्टर which holds that particular data. But here the pointer variable is one which holds the address of that variable to whom that pointer variable points, correct. अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमको किसी का घर या फिर एड्रेस नहीं पता है बट उसके घर के आजू बाजू में कोई तो भी एक लोकेशन पता है, हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उसको कॉल करते कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, नाउ टेल मी योर एड्रेस. दैट इज व्हाट, पॉइंटिंग टू दैट एड्रेस. उस पर्टिकुलर लोकेशन से हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं. तो दिस इज व्हाट द पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द वेरिएबल विच फॉर विच इट होल्ड्स देयर एड्रेस, जिसका वो क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है. ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे.
वेरिएबल एंड क्वांटिटी, ये एक वेरिएबल है क्वांटिटी, वैल्यू थी उसमें 179 और एड्रेस था 500. When we have one another variable that is a p which holds the 500 as an address. ठीक है, तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा? 500 will point to the value 179, बट ये एड्रेस भी कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है, विच विल बी स्टोर ऑन 5048. ये क्या हो रहा है? 5048 पे स्टोर किया जा रहा है. वही इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, a pointer variable is therefore nothing but a variable that contains an address which is a location of another variable in the memory. यहाँ पे थोड़ा सा confusion हो सकता है, तो उसको दूर करने के लिए एक ही चीज़ है, सिंपल चीज़ है कि जो आप अभी घर में अभी बहुत से छोटे छोटे बच्चे रहते तो वो एक गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक, नहीं उसका नाम वो नहीं है. Anyone remember that game where the clues are there and with that clues we have to find out treasure and hunt? Is it so? Yes, sir. तो ये सबको पता है ट्रेजर एंड हंट. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खोजो और पाओ. लपा छुपी. हाँ, वो तो लपा छुपी तो वो तो हम इंसान के लिए करते हैं ना. इंसान खुद, बच्चा खुद छुपता है और उसको फाइंड आउट करना पड़ता है. हियर वी आर यूजिंग द सम गुड्स और थिंग्स, उसमें हम क्ल्यू देते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा लिखते हैं कि टेबल फैन के बाजू में या फिर राइट हैंड में, डोर के बाजू में, डोर के ऊपर, डोर के नीचे, ऐसा कुछ तो भी हम लिखते हैं. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ द एक्चुअल एड्रेस एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंटर वेरिएबल. वो अगर गेम आपने अगर कभी खेला होगा या फिर देखा भी होगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर. डायरेक्टली आपको कोई बताता है क्या कि आपके लिए चॉकलेट्स लाए वो फ्रिज में रखे हुए हैं, जाओ ले लो? अगर वो गेम खेल रहे हैं हम, उसकी बात बता रहा मैं, तो वो आपको बताएंगे कि यू हैव एक चीज़ है आपके लिए लाई है, ठीक है, वो गर्मी से पिघलती है तो उसको एक अच्छी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हो सकती है फ्रिज, तो आप फ्रिज में जाके उसको ढूंढ लेते हो, ठीक है, और कुछ क्लूज अगर दिए होंगे तो वो भी रहता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर, दैट विच होल्ड्स. पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? दैट वेरिएबल दैट कंटेन्स अनदर एड्रेस विच इज अ लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इनटू द मेमोरी. रिमेंबर, since a pointer is a variable, its value is also stored in the memory of another location. Suppose that we assign the address of a quantity. quantity ये नाम का एक वेरिएबल है, उसका जो एड्रेस है, क्वांटिटी का एड्रेस क्या है? 5000 टू अ वेरिएबल p. अब ये p को पॉइंट कर, यानी p इसको पॉइंट आउट कर रहा है, p इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स दैट p इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. p is the pointer and p is pointing to the address of quantity variable, that means 5000. और ये जब ये पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स दैट इट इज पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज एड्रेस से कुछ भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं. एड्रेस से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? नहीं. वी रिक्वायर द वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है. The link between the variable p and the quantity can be visualized here. तो उन्होंने वो विजुअलाइज करके बताई है. तो ये जो कंसेप्ट अभी हमने देखा है, ये समझ में आया है क्या कि इसको रिपीट करना है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे तो चले गए मीटिंग से, हो गया, बोले हमारा टाइम खत्म हो गया, ठीक है. Sir, हाँ, यस. is this concept as similar to call reference? Yes, call by reference ना? Yes, sir. Call by reference and call by value, these are the two things. वो इसके आगे भी है हमारे इसमें, ठीक है, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे शायद प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल नंबर 7 या 8 होगा, विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस
और कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू मीन्स वी आर पासिंग द वैल्यू to the another function. Same local value we are passing to the another function and it will use it. And call by reference is we are giving the address of that variable. जैसे अगर मुझे किसी ने कुछ बोला कि सर मुझे आपसे 2000 रुपये चाहिए. किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे आपसे 2000 रुपये चाहिए. ठीक है, मैं बोलूँगा फिलहाल तो भाई मेरे पास नहीं है, मुझे एटीएम में जाना पड़ेगा, घर पे तो नहीं है. ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया, उनको रेफरेंस दे दिया एटीएम. ठीक है, तो अगर मेरे पास नहीं है तो एटीएम इज व्हाट एग्जैक्टली रेफरेंस. अदरवाइज आई विल गिव द रेफरेंस लाइक फिलहाल तो मेरे पास नहीं है बट दिस वन इज XYZ पर्सन, आप उसके पास जाइए, उसके पास से आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो आई एम गिविंग द रेफरेंस, आई एम गिविंग द एड्रेस ऑफ द समवन एल्स इंस्टेड ऑफ आई एम गिविंग. मेरे पास खुद के पास नहीं है इसलिए मैं किसी और का एड्रेस उनको दे रहा हूँ. दैट इज व्हाट अ कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है, तो ये उसी के प्रकार से है. ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, अंडरलाइंग कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर्स. पॉइंटर्स के जो कंसेप्ट है उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंटर कांस्टेंट, पॉइंटर वैल्यूज एंड पॉइंटर वेरिएबल्स. ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहती है. इसको हम एक बार देख लेंगे थरली. मेमोरी एड्रेस विद इन अ कंप्यूटर आर रेफर टू एज अ पॉइंटर कांस्टेंट बिकॉज इट विल नॉट चेंज. उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, आपका घर का जो एड्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, अक्षांश यानी रेखांश, ये पता है क्या मराठी में? एनीवन? हेलो. विषुववृत्त रेखावृत्त. हाँ, तो वो विषुववृत्त इक्वेटर जो है वो तो हमारे अकोला बुल्ढाना उस साइड से गया, इसलिए तो वो पूरा एरिया जो है चंद्रपुर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर. रिपीट. टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर. yes 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 exactly. so this longitude and altitude and longitude, ठीक है, ये हर एक लोकेशन के रहते हैं. करेक्ट. तो अगर हमने हमारा घर बनाया है उस हिसाब से, वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से, अक्षांश एंड रेखांश, ठीक है, तो वो कभी चेंज हो सकते हैं क्या? यानी हमारा घर कभी चलने लग सकता है क्या? इंडिया में नहीं चलते, फॉरेन में चलते हैं. ठीक है, वो उनके लकड़े के घर रहते हैं बनाए हुए, वो नीचे से बेस काट लेते और उसको माउंट करते एक आधे ट्रक के ऊपर, पूरा का पूरा हाउस ट्रक के ऊपर माउंट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. तो वो फॉरेन कंट्रीज में जनरली होता है बट इंडिया में नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ फिक्स इनसाइड द सॉइल, सो यू कांट मूव इट. इवन इफ अगर आपको आपके घर को अगर थोड़ा सा ऊपर लेना है तो वो भी ले सकते हैं हम. अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कंसेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजीज़ है, उसकी वजह से हम हमारे घर की हाइट बढ़ा सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से जो ग्राउंड लेवल है हमारे घर की वो बहुत नीचे चली जाती है और वाटर क्राइसिस हो जाते हैं, उसमें पानी भरता है हमारे घर में बरसात का. तो हम हमारे घर को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स. करेक्ट. तो वो चीज़ हो सकती है. बट द एड्रेस ऑफ आवर हाउस दैट रिमेन्स कांस्टेंट till the house is there. Similarly, the address of the one variable which is declared, that address remains constant. Whether variable will exist or not, वो तो change हो सकता है, उसमें जो value है वो भी overwrite हो सकती है, but that address will remain as it is and thus it is called as a constant which will not change. So pointer constant which refers, that is what a memory address. We cannot change them, we can only use them to store the data values like your house number, वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. देन वी कैन नॉट सेव द वैल्यू ऑफ अ मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली. हम डायरेक्टली उसकी तो एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली ऑब्टेन द वैल्यू थ्रू द वेरिएबल स्टोर्ड देयर यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर. जैसे एक फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में प्रोग्रामिंग जब हमने स्टार्ट की थी तब हमारा एड्रेस वेरिएबल और ए वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस अगर निकालना है तो कुछ प्रोग्राम्स एक दो स्टूडेंट्स ने एग्जीक्यूट किए थे कि हाउ टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ
your variable. ठीक है, so with the help of address operator ampersand we can directly find out the variable where the variable is stored inside the memory location. तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसमें वैल्यू अगर है तो, एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है तो, अगर एड्रेस पे वैल्यू ही स्टोर नहीं है देन यू कांट फाइंड आउट द एड्रेस. द वैल्यू दस ऑब्टेन इज नोन एज अ पॉइंटर वैल्यू. करेक्ट. पहले क्या देखा हमने, पॉइंटर कांस्टेंट यानी मेमोरी लोकेशन जो है कोई भी वेरिएबल की, दैट इज व्हाट अ पॉइंटर कांस्टेंट. नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू through the variable stored there using a address operator, and thus the value is obtained is known as a pointer value. Then the pointer value may change from one run of the program to the another. ये change हो सकती है. ठीक है. Once we have a pointer value, it can be stored into the another variable. The variable that contains a pointer value is called as a pointer variable. अब ये सबसे पहला जो है पॉइंटर कांस्टेंट, इसको हम एग्जांपल में अगर देखते हैं, ठीक है, सो पॉइंटर कांस्टेंट इज व्हाट, रेफरिंग टू द एड्रेस. सो दिस वन इज 5000 इज द पॉइंटर कांस्टेंट. ठीक है, ये जो पॉइंटर कांस्टेंट है ये यहाँ पे क्या है, 5000. देन वी आर हैविंग पॉइंटर वैल्यू. पॉइंटर वैल्यू दैट इज नथिंग बट द 179. बट ये 179 किस एड्रेस पे स्टोर है, ये पॉइंटर एड्रेस पे स्टोर है जिसको हम पॉइंटर कांस्टेंट बोल रहे हैं. बट ये जो एड्रेस है ये भी कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, उसका भी एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द पॉइंटर वेरिएबल. ये यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वंस वी हैव अ पॉइंटर वैल्यू 179 it can be stored into the another variable. Correct. The variable that contains a pointer value is called as a pointer variable. अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें इसलिए हो सकता है कि ये जो पॉइंटर नाम बीच बीच में आ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन कंसिडर कांस्टेंट, वैल्यू एंड वेरिएबल. वेरिएबल यानी क्या, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक है. कांस्टेंट यानी जो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है. और पॉइंटर वैल्यू जो बीच में है, दैट पॉइंटर वैल्यू इज नथिंग बट द वेरिएबल स्टोर्ड दे आर यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर. कहाँ पे स्टोर्ड किया है उसको हम पॉइंटर वैल्यू बोल सकते हैं. So that is what the concept of a pointer. And then the next topic, that is accessing the address of a variable, which we will see in the next lecture. Thank you.